सो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। सो उसमें आपको मैंने बताया था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो मेटल्स का बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड द नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, लाइक you can see here, these are the non-metals, Cl, oxygen, and these are the non-metals. So they gain electrons and form negative ions, while the metals are lose electrons, so they form the cations. Okay, so this is the most important feature of the metals and non-metals. Now the categorization of metals, like first the alkali metals, the first A group, which is known as the first A, means alkali metals, having lithium, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम. ठीक है, सो दीज आर दी alkali metals. Alkali metals are soft in nature, they can cut by the knife. Okay, so these are the soft metals, and these are belonging from the first A group. They are very very reactive metals. They react with the moisture, and they catches fire. Okay, this much of reactive they are. So they form the hydrides, oxides, hydroxides, carbonates, these kinds of other substances they can form. Now the characteristics of the alkali metals, like occurrence, all of them are very reactive and do not occur in free state because they are very reactive. अब क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो वो अकेले तो क्या होगा, फ्री स्टेट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है. दे कंबाइन विद अनदर नॉन मेटल्स और कार्बोनेट, सल्फाइड्स और सल्फेट्स और हाइड्रोक्साइड्स. सो दे फॉर्म एनी ऑफ द सॉल्ट, और इन द कंबाइंड स्टेट दे विल एग्जिस्ट. नेचर क्या होगा, सॉफ्ट होंगे एंड हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. बॉन्डिंग की बात करते हैं तो दे फॉर्म आयनिक बॉन्डिंग. Their bonding will be the ionic in nature. Action of air, so they react rapidly with oxygen and water vapor in the air. यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ में तुरंत रिएक्ट करती हैं और वाटर वेपर के साथ में भी तुरंत रिएक्ट करती हैं. सो रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे आप क्या करते हो, ग्रुप अगर देखते हैं आप इसका, जो आपका फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप में मैंने जो आपको बताया कि जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम. ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इसको सीजियम एंड फ्रेंसियम. तो जैसे जैसे आप नीचे की साइड जाओगे ग्रुप में, तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो आपकी क्या होगी, इंक्रीज़ करती चली जाती है. यानी कि जो नीचे वाले मेटल्स हैं लाइक फ्रेंसियम एंड सीजियम, दे विल रिएक्ट वेरी विगरसली विद ऑक्सीजन और एयर. Now action of water, so they react violently with the water and produce hydrogen, and due to the presence of this hydrogen gas they catches fire. जैसे ही वाटर के प्रेजेंस में आएंगे, they will form their hydroxides and evolve the hydrogen because they are very reactive. And I told you that the reactive metals will evolve out the hydrogen in presence of water. Now the actions of acids, so they react violently with the dilute HCl and dilute hydrogen sulfate, that means sulfuric acid, and they will also produce hydrogen gas. ठीक है, किसी भी एसिड से अगर मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा. अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, एल्कली मेटल्स के बारे में बात कर रहे हो. ठीक है, एंड बिकॉज दे आर फ्रॉम बिलोंगिंग फ्रॉम द फर्स्ट ए ग्रुप, सो दे विल लूज ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड दे विल फॉर्म कैटाइन, यूनी पॉजिटिव कैटाइन. एंड when because they are very soft metals, so they can cut by the knife. Okay, and they have lustrous silvery white luster, and they become tarnish in presence of air. All the alkali metals salts imparts color to flame. Different metals have different colors, just like lithium crimson red, sodium golden yellow, potassium pale violet. ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं आपके एल्कली मेटल्स हैं वो एक डिफरेंट कलर की फ्लेम देते हैं. 10th characteristic is alkali metals are obtained by the electrolysis of their molten salts. तो इनको आप इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो. Now second A group or alkaline earth metals. So alkaline earth metals like beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. These all are the alkaline earth metals. अब alkaline earth metals क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में ये हाइड्रोक्साइड्स और के कार्बोनेट्स के फॉर्म में ये मिलती है. ठीक है, so all the elements of this group have 2 electrons in their most orbit and show the valency 2 because they are belonging to the second A group. ठीक है, तो क्योंकि ये आपके सेकेंड ए ग्रुप से बिलोंग कर रही है तो इन लोगों की इनकी जो वैलेंसी है वो क्या होगी, 2 होगी. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सो अकरेंस, दे आर रिएक्टिव मेटल्स बट लेसर देन दी एल्कली मेटल्स. नेचर कैसा होगा इनका, दे आर ग्रेइश वाइट इन कलर एंड हार्डर देन दी एल्कली मेटल्स.
बॉन्डिंग अगर बात करते हैं तो बेरिलियम इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, बाकी इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं इसके नीचे, बेरिलियम के नीचे, वो सारे आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे. एक्शन ऑफ एयर, सो दे आर लेस रिएक्टिव दैन एल्कली मेटल्स, सो दे विल रिएक्ट विद वाटर बट नॉट दैट मच ऑफ एल्कली मेटल्स. मतलब एल्कली मेटल की तरह ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं शो करेगा, लेकिन थोड़ा सा ये एयर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करेंगे. ठीक. एक्शन ऑफ वाटर, सो दे रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन फॉर्मेशन होगा. हाइड्रोजन वाटर के साथ में अगर कोई मेटल रिएक्शन करेगा सेकेंडरी ग्रुप का, हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी. एक्शन ऑफ एसिड्स की अगर बात करते हैं तो एसिड्स के साथ में ये मेटल रिएक्ट करके उनके लाइक मेटल अगर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं, सल्फेट्स फॉर्म करेंगे एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे. ठीक है. लो आयनाइजेशन एनर्जी, तो मेटल्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लो होती है. ठीक है. और जो आपके नॉन मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, क्योंकि लो आयनाइजेशन एनर्जी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी एंड रिड्यूसिंग पावर अच्छी होगी. ठीक है. दे आर, दैट्स वाई दे आर नोन एज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपैरेटिवली लो होंगे. ठीक है. बट दीज आर हायर देन द एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स के कंपेयर में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होंगे, ग्रेटर. नाउ एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ऑल अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इम्पार्ट कलर टू फ्लेम लाइक कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन, बेरियम एप्पल ग्रीन एंड रेडियम क्रिम्सन. तो ये सारे कलर्ड फ्लेम देते हैं. ठीक. एंड दे आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस बाय द मॉल्टन सॉल्ट्स.